Now the next point is how to draw these equations, how to plot these equations. Let me take these equations to maybe just one where I can see them together, maybe somewhere over here. This was the equation for bending moment, and this was the equation for shear. All right, and these equations are valid for values of x between 0 and 3 meters. And then next we have mx from here and vx from here. And these are valid for 3 meter and between 3 meter and 6 meter. Alright, now we need to plot these equations. Alright, we need to plot these equations. So you will, if you're using a computer, you can use Excel or anything else you can like. So I will use Excel and will plot these equations. So SFD and BMD, okay, by using equations. Okay, so let's say this is X, this is V in kilonewton. This is how you should be also doing it. ठीक, आपने भी इस तरह से करना है. M in kilonewton. Sorry, M in kilonewton meters. Now X values, if I can just copy them, I can just copy these to my Excel sheet also, so I can see them at a glance somewhere over here, maybe. I'm sorry, I didn't copy the whole of it. Okay, so these are the equations. Now X has to range from 0 to 6 meters. So I have to start from 0. And the next is my choice, how accurately I want to plot it, how how finely I want to plot it. If I want to plot it very finely, I need to plot it, I need to have the intervals small enough. For example, I can take, maybe I can show 6 meter over here. I can just put this 6 meter over here, and then I can use it to set up my interval. For example, I can say something like this. If this is, let me insert some space over here. I want to say span is 6 meter, okay, and how many intervals do I want? How many intervals? I want to break this 6 meter down into maybe 10 intervals. Okay, so if I want to break it down into 10 intervals, I would go like this. This first would be equal to 6 into 0. Okay, and the next value is this divided by this, and the next value should be 2 times or maybe I can go in some different way. Maybe I can say 6 by 10 makes 0.6 meter, but I want to make it more systematic. But I would just like to play with these variables. I just want to see what happens when I change the interval. Alright, so yeah, the one way would be
to add, this can be written as this value, previous value, plus 6 by 10. Now if I drag it, you can see if I drag this, it will give me an error. Does anybody know why is it giving me error? Let me trace. I'm going to formulas and I want to trace the dependents of this formula, precedents of this formula, and it says you're using this cell and this cell. While I was wanted to use this cell and this cell throughout my throughout the x values. So what I can do is, anybody knows the solution? I can just add dollar sign over here, $B and $1, similarly $E and $1. Now this will make sure that when I drag it, now you can see B5, if you look at this, B5 over here becomes B6 by dragging, but B1 remains B1. Similarly, E1 remains E1. This is because I have added dollar signs before B and before 1. It means I don't want to change these values when I drag. Alright, so if I drag all the way down, I need to drag only up to 6 meters because that's what the maximum value of value is. Now let's see what problems we would face. So let's put the values of x, put the values of v for different values, for different ranges of x. ठीक है, जब shear की value मैं put करने जा रहा हूँ, I need to insert an equation like this. V is equal to minus 60. It is independent of x. It is a constant value of x. It is a constant value regardless of what is the value of x. Up to this value is true. Up to this point, this is fine. But if I write this value for 3 meters, I would be violating the range of this x. मैं 3 मीटर के ऊपर नहीं लिख सकता ना ये वैल्यू. 3 मीटर के लिए तो वैलिड ही नहीं है ना ये इक्वेशन भी, ना ये इक्वेशन. तो अब मैं क्या करूँगा? I need to add 2 values before 3, one value before 3 and one value after 3. कैसे? एक मैं वैल्यू ऐड करने जा रहा हूँ 2.999 और दूसरी वैल्यू मैं ऐड करने जा रहा हूँ 3.001, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और अब इससे ये वाली वैल्यूज अफेक्ट हो गई हैं, लेकिन मैं इससे ये कर सकता हूँ कि no problem. These are practically, this is practically 3.6 and this is practically 4.2 and similarly this is practically equal to 6 meters. So it doesn't matter. Okay, doesn't matter. If you want to reduce the error, you can add many 9s over here. Maybe I have added 6 9s, so I should add 5 zeros over here if you want to reduce the error. Okay, now what next? I can drag it. ठीक है, ये वैल्यू से माइनस Vx इक्वल टू -60 किलो न्यूटन, ये ट्रू है फॉर दिस वैल्यू क्योंकि 3 से कम है. लेकिन इससे जैसे मैं नेक्स्ट वैल्यू पे जाऊंगा, 3 से अगली वैल्यू पे जाऊंगा, तो अब मैं इस रेंज में आ जाऊंगा. एनीथिंग ग्रेटर देन 3 फॉर x, एनीथिंग ग्रेटर देन 3, v इज -40, सो ये -40 हो जाएगी वैल्यू. ठीक, एंड देन आई कैन ड्रैग दिस वैल्यू डाउन ओवर हियर. अच्छा, एक तरीका तो इसका ये है. दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इफ़ फंक्शन यूज़ करें. इफ़ फंक्शन अभी मैं आपको इफ़ फंक्शन से करके दिखाऊंगा. ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इफ़ फंक्शन यूज़ करता हूँ. सो मैं इफ़ फंक्शन कैसे यूज़ करता हूँ? मैं कहता हूँ इफ़, ठीक, मैंने सिंपली, अच्छा, इक्वल टू पहले लिख लें, फार्मूले में स्टार्ट में पहले इक्वल टू लिख लें. इफ़ इक्वल टू इफ़, जब भी फार्मूले लगाने तो इक्वल टू से स्टार्ट होने. ठीक है, आपको बहुत सारों को लोगों को एक्सेल पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ अगर नहीं भी पता तो आप यहाँ पे सीख जाएं और फिर आप हर दफ़ा इसको यूज़ कर सकें.
इफ़ अब वो मुझसे पूछ रहे लॉजिकल टेस्ट, यानी आप का क्या लॉजिकल टेस्ट है। मेरे लॉजिकल टेस्ट ये है, ये कि मेरी जो x की वैल्यू है वो इस रेंज में लाई करती है या इस रेंज में लाई करती है, ठीक है। तो मैं इसको एक टेस्ट के अंदर एंड फंक्शन ऐड करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ एंड, यानी मैं दो कंडीशन है मेरी। एक कंडीशन तो ये है कि x की वैल्यू, पहली कंडीशन ये कि x की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 हो। तो मैं कहता हूँ दिस वे x इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 हो। पहला टेस्ट लॉजिकल 1 ये हो गया आपका। अच्छा सॉरी, मैं इसी के अंदर ऐड करूँगा। लॉजिकल 1 ये है, लॉजिकल 2, यानी ये दोनों चीज़ें जब एंड का आपको पता है ना, इस एंड का मतलब ये कि ये पहला जो मैंने टेस्ट लगाया ये भी आंसर पॉजिटिव ट्रू हो और लॉजिकल 2 जो मैं डालने जा रहा हूँ वो भी ट्रू हो, तो फिर इसका टोटल का आंसर ट्रू बनेगा, ठीक है। So, अब मैं डालता हूँ x इज लेस देन 3, ठीक, ये लॉजिकल 2 है। अगर लॉजिकल 1 भी ट्रू हो, लॉजिकल 2 भी ट्रू हो, तो फिर इस होल का आंसर ट्रू बनेगा, ठीक है। और अगर अब ये अगर ट्रू आंसर निकले यहाँ से, यानी x 0 से बड़ा भी हो और 3 से छोटा भी हो, तो उस केस में मैं क्या चाहता हूँ कि v की कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। फिर मैं कहता हूँ v का फार्मूला मेरा ये है -60। और अगर ये बात फॉल्स हो तो फिर मैं क्या करूँ, मैं एक तो ये कि मैं लिख दूँ कि अगर ये फॉल्स है तो फिर -40 लिख दें। लेकिन बेस्ट तरीका ये है, जो कि एरर फ्री मेथड है, वो ये है कि आप लिखें एक और इफ़ वैल्यू, इफ़ फॉल्स के अंदर एक और इफ़ फंक्शन लगाएं ऐसे, और फिर इसके अंदर लॉजिकल टेस्ट डिफाइन करें। यानी ये जो अब इफ़ फंक्शन डाल रहा हूँ ना, ये इस वाले इफ़ फंक्शन का यानी ये असल में मेरे पास ये शो हो रहा था वैल्यू इफ़ फॉल्स, ठीक, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ ट्रू तो ये है ना। अब मैंने कॉमा डाल दिया तो वो कहते हैं वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो मैं वैल्यू इफ़ फॉल्स में कोई फिक्स वैल्यू नहीं डाल रहा, मैं उसके अंदर फिर एक और इफ़ फंक्शन लगवाना चाह रहा हूँ, इफ़ का अंदर एक और इफ़, ठीक है। यानी अगर ये बात फॉल्स निकले तो फिर आप एक और इफ़ फंक्शन को टेस्ट करें कि वो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, यानी एक और इफ़ फंक्शन एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। ये थोड़ी बहुत छोटी सी प्रोग्रामिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आगे भी। अब आप नेक्स्ट मेरा लॉजिकल इफ़ फंक्शन के अंदर जब भी यूज़ करेंगे तो उसमें कोई ना कोई लॉजिकल टेस्ट होगा। अगला लॉजिकल टेस्ट ये है कि मेरी x की वैल्यू इन दो के बीच में लाई करती हो, 3 मीटर और 6 मीटर। तो अब मैंने इसमें डालना है एंड फंक्शन फिर से, क्योंकि मैंने x की एक रेंज को डिफाइन करना है कि मेरी x की वैल्यू उस रेंज में लाई करे, तो फिर आपने उसको ट्रू मानना है, ठीक। यानी x, अब मैं फर्स्ट लॉजिकल डाल रहा हूँ कि x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, ठीक, x इज़ ग्रेटर देन 3। और फिर लॉजिकल 2 क्या है कि x की वैल्यू या 6 से बड़ी हो, सॉरी, या x 6 से छोटी हो या मैक्सिमम 6 के बराबर हो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, लेस देन और इक्वल टू 6। इसको आपने फिर पहले लेस दबाना है फिर इक्वल टू, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि पहले इक्वल टू फिर लेस। यहाँ आपने जब इक्वल टू और ग्रेटर डालना था तो पहले ग्रेटर और फिर इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू फिर ग्रेटर, ठीक है। इक्वल टू और ग्रेटर में पहले इक्वल टू फिर ग्रेटर डाला जाता है, लेकिन स्मॉलर और इक्वल टू में पहले स्मॉलर और फिर इक्वल टू। अच्छा, लॉजिकल 2 मेरा ख़त्म हो गया। अब वो लॉजिकल टेस्ट मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं कॉमा डाल दूँ। वो कॉमा डाल दिया तो वो कहते हैं वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर ये जो आपने अभी इफ़ फंक्शन लगाया है, यानी आपकी एक्स वैल्यू वाकई अगर इसी रेंज में लाई करे तो आपका तो वी के तो फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं इस सेल में क्या लिखूं, यानी शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट हो। फिर मैं कहता हूँ कि ये -40 से कैलकुलेट हो, मैं कहूँगा -40, ये वैल्यू इफ़ ट्रू। अब मैं कहता हूँ, अब वो कहता है अगर ये भी ना हो, यानी एक्स अगर इसमें लाइन नहीं किया तो वो सेकंड टेस्ट पे चला गया, इसमें भी लाइन नहीं किया, तो फिर मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि वो मुझे बताए कि आपकी जो पॉइंट है वो स्पैन से बाहर निकल गया। तो मैं उसको कोई कमांड में प्रिंट, कोई चीज़ में प्रिंट करवाना, टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। जब टेक्स्ट प्रिंट करवाना हो तो फिर आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज करेंगे। तो स्टार्ट में मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स लिखा, अब मैं लिखता हूँ पॉइंट लाइज beyond, point does not lie
इन द स्पैन ऑफ द बीम। ठीक, मैं ये रिपोर्ट उसके अंदर लिखवाना चाह रहा हूँ। ये आखिर में भी फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। अब ये वैल्यू इफ़ फॉल्स मैंने डाल दी है पहले वाले इफ़ फंक्शन की। अब मैं क्लोज करूँगा तो पहला सॉरी ये सेकंड जो इफ़ डाला था, अब मैं जब ब्रैकेट लगाऊंगा तो पहला इफ़ फंक्शन क्लोज, सॉरी सेकंड वाला इफ़ फंक्शन क्लोज हो जाएगा। ये देखा आपने, जब वो क्लोज होता है ना तो फिर वो एक थोड़ी देर के लिए आपको बोल्ड करके आखिरी वो दिखाता है पैरेंथेसिस। ये देखिएगा थोड़ा सा बोल्ड होके फिर वो हो गया कि इसका मतलब ये कि आपका एक फंक्शन क्लोज हो गया। ये वाला जो इफ फंक्शन यहाँ पे शुरू हुआ था, ये वाला फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया, और अब मैं दोबारा इसी इफ फंक्शन के अंदर चला गया हूँ उसकी वैल्यू फॉल्स में, तो मैं उसको भी क्लोज करने जा रहा हूँ। ये दोबारा वो भी क्लोज हो गया। अब मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। सॉरी, इट फाउंड अ टाइपो। क्या टाइपो उसको मिला है? अच्छा सॉरी, ये मुझसे गलत हो गया, पहले ग्रेटर डालना था फिर इक्वल टू डालना था यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक डाला है हमने, लेस देन और इक्वल टू ठीक डाला। यहाँ पे पहले हमने ग्रेटर फिर इक्वल टू डालना था। वो मुझे ये करेक्शन दिखा रहा है कि आप इस करेक्शन को कर दें, ये ग्रेटर पहले डाल दें इक्वल टू बाद में। मैंने पहले इक्वल टू डाला था फिर ग्रेटर, तो इसको उसने मुझे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया और वो कहते हैं आप इस करेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहते हो? मैं कहता हूँ यस। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ एंड यू विल सी हाउ इट वर्क्स। यहाँ तक मैंने ड्रैग किया, 60 दे रहा है। अब मैं फर्दर इसी फार्मूले को ड्रैग करूँगा और ये ऑटोमेटिकली इसको -40 देगा। ठीक, अब मैं यहाँ तक ड्रैग कर रहा हूँ, ये -40 लिखेंगे। अच्छा, अब मैं आपको समझाने के लिए कि ये देखिएगा, अब ये तो मेरा पॉइंट नहीं है ना, मैं तो बीम से बाहर निकल गया हूँ। x = 6.59, ये तो मैं बीम से बाहर निकल गया हूँ ना। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो देखिएगा वो जो मैंने लिखा था ना, पॉइंट डज नॉट लाई इन द स्पैन ऑफ द बीम, ये आ जाएगा। देखिएगा ऐसे, पॉइंट डज नॉट लाई इन द स्पैन ऑफ द बीम। अब इससे ये हो जाएगा कि अगर आप गलती से ज़्यादा भी ड्रैग x की वैल्यू l से बड़ी भी कर देंगे तो वो आपको एरर प्रिंट करके देगा। ठीक है, यानी आपको बजाय इसके यहाँ पे कोई x इस यहाँ पे वो -40 प्रिंट कर दे, कोई वैल्यू प्रिंट कर दे, वो आपको मैसेज दे देगा कि आप ये जो है ना, अब आप बीम से बाहर निकल गए हैं, तो अब आप इसको डिलीट कर देंगे। ठीक हो गया। इसी फॉर्मेट के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, अब आपको होपफुली समझ आएगा मोमेंट का फार्मूला। अब मैं लिखता हूँ इफ़, सॉरी इक्वल टू से स्टार्ट होना, इक्वल टू इफ़, ये मैं एंटर करना चाह रहा हूँ। इफ़ x is ग्रेटर देन, अच्छा मैं एंड का फंक्शन पहले डालूंगा क्योंकि दो तरह की कंडीशंस लगनी है इसके ऊपर। इफ़ एंड फिर मैं लिखूँ, फर्स्ट लॉजिकल है x is ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दूसरा लॉजिकल है x is लेस देन 3। ठीक हो गया, दोनों लॉजिकल्स डाल दिए। अब मैं एंड का फंक्शन क्लोज हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब मेरा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। अगर ये दोनों बातें ट्रू हो कि x 0 से बड़ा हो या एटलीस्ट 0 हो और 3 से छोटा हो, अगर ये दोनों बातें ट्रू हो यानी x इनके बीच में लाई करे 0 और 3 के बीच में, या 0 हो, तो फिर मैं मोमेंट का ये फार्मूला डालना चाहता हूँ, ये वाला 60x - 300। तो मैं कैसे डालूँगा? 60 × x - 300, ये मैं मोमेंट का फार्मूला है अगर x यहाँ लाई करे। फिर नेक्स्ट में क्या करूँगा, वैल्यू इफ फॉल्स में क्या लिखूँगा? अब मैं दोबारा से इसके अंदर अगर ये x इसके बीच में लाई ना करे, इस रेंज में लाई ना करे, तो फिर मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसमें ये फार्मूला नहीं डालना, सॉरी ये फार्मूला नहीं डालना चाहता कि अगर ये फॉल्स हो तो ये फार्मूला डाल दो। उसका ये फिर वो मैं x = 7 के लिए भी गलती से अगर करूँगा ना, तो वो यहाँ पे 7 पुट करके मुझे 7 के लिए भी वैल्यू देगा। हाँ कि x = 7 मेरा बीम के ऊपर लाई ही नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे दोबारा मैं यहाँ पे इफ फंक्शन लगाऊँ और मैं इसको कहूँ कि दोबारा से एंड फंक्शन लगा के दोनों लॉजिकल्स लगाऊँ। लॉजिकल 1 ये है कि x लाई करे, ये मैं ये वाला एंटर करना चाह रहा हूँ दोबारा, x बड़ा हो 3 से। दूसरा लॉजिकल ये है कि x, सॉरी ये है x जो है वो इक्वल टू हो या लेसर हो देन 6। ठीक, ये मेरा लॉजिकल टेस्ट क्लोज हो गया। अब मैं वैल्यू इफ ट्रू, ये वाली वैल्यू 40 × x - 240, ठीक हो गया वैल्यू इफ ट्रू में। और वैल्यू इफ फॉल्स में
मैं अगेन वो एरर मैसेज प्रिंट करवा दूंगा कि द पॉइंट डज नॉट लाई इन द स्पैन ऑफ द बीम। ठीक है, अब मैं दोबारा से 2 ब्रैकेट्स लगा के इसको क्लोज कर दूंगा। एंड आई मेड अ टाइपो समवेयर, लेट्स सी वेयर इज द टाइपो। मैंने कहीं दोबारा वही वाला मिस्टेक की होगी। ये तो मैंने ठीक डाला है, और कहाँ पे मिस्टेक है, लेट्स सी। B4 ग्रेटर, अच्छा B4 इक्वल टू R, हाँ यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। मैंने पहले लेस देन दबाना था, फिर इक्वल टू था। ये मुझे अक्सर भूल जाता है, लेकिन जब ये टाइपो आता है तो फिर मुझे पता चल जाता है कि मैंने टाइपो किया। सो यहाँ पे मैंने इक्वल टू आर लेस लिखा है, मुझे लिखना था लेस देन आर इक्वल टू, यानी पहले लेस देन फिर इक्वल टू लिखना था। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी x इक्वल टू 0 के ऊपर अगर आप x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते तो ज़ाहिर है आंसर -300 आएगा ना। इसी तरह से आप x की वैल्यू आप चेंज करते जाएं, यहाँ तक आ जाएं -120। ठीक, फिर आप यहाँ पे आ जाएं अगेन -120। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये दोनों 3 हैं, लेकिन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमने इसको ब्रेक डाउन किया है। ठीक हो गया ये। अब आप यहाँ तक तो आ जाएंगे इस तरह से। ये अब आपको वो ऑलमोस्ट 0 की वैल्यू दे रहा है। अगर ये एग्जैक्टली 6 हो तो ये मुझे 0 देगा, लेकिन आज चूँकि मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया है कि मैंने एग्जैक्टली 6 नहीं डाला, तो वो मुझे ऑलमोस्ट ये -4 × 10⁻⁵ इज ऑलमोस्ट 0। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट 0। तो अच्छा, अब मैं अगर फर्दर इसको ड्रैग करता हूँ फिर वही वाला एरर, द पॉइंट डज नॉट लाई। अच्छा सॉरी, इट डजंट गिव मी दैट एरर। वाई एरर क्यों नहीं दे रहा? इसका मतलब अच्छा, ये मैंने 0 यहाँ पे लिखा है ना, इसलिए यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँगा। ये अब x की वैल्यू बड़ी हो गई 6 से, तो मुझे कह रहा है द पॉइंट डज नॉट लाई इन द स्पैन ऑफ द बीम। ठीक है, इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि आप सिर्फ वहाँ तक रहेंगे। अच्छा, अब मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूँ, एक्सेल में ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ। एक तरीका ये है कि आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं। आप ऐसे 0 टू वैल्यू को सिलेक्ट कर दें 0 से लेके v तक, और आप इधर आ जाए इंसर्ट में। ठीक है, होम के बाद इंसर्ट में, और यहाँ पर आपको चार्ट्स नज़र आएंगे। ठीक, इन चार्ट्स के अंदर आपको डिफरेंट चार्ट्स के ऑप्शंस हैं। आपने स्कैटर्ड वाले इंसर्ट स्कैटर इसके अंदर आना है, या ये वाले जो चार्ट है, और इसको ये एरो को क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपने डिफरेंट ऑप्शंस है इसमें। आप सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करवाना चाहते हैं, या आप मार्कर्स के साथ साथ स्कैटर विद स्मूथ लाइंस एंड मार्कर्स चाहते हैं, या आप जो है इस तरह की लाइन चाहते हैं, या इस तरह चाहते हैं, या इस तरह चाहते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन इस वक्त ये है, क्योंकि हमें पता है कि शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो इस केस में एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो हमें जो है वो इसलिए स्ट्रेट लाइन वाली प्लॉट करनी चाहिए दिस वे। अब ये प्लॉट तो हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम तो प्लॉट हो गई है, लेकिन अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे प्लॉट होगी? एक तरीका उसका ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें कहीं भी, ये राइट क्लिक करें और यहाँ सेलेक्ट डेटा पे जाएं। सेलेक्ट डेटा में अब आप यहाँ ऐड में जाएं, यहाँ सीरीज़ है ना, अभी एक सीरीज़ प्लॉट हुआ है, ये इसको हम सीरीज़ भी कह सकते हैं। ठीक, यानी एक कर्व प्लॉट हुई। अब मैं ऐड में जाऊँगा तो मुझे दूसरी सीरीज़ का ऑप्शन दे देगा। सीरीज़ नेम में लेट से BMD रख लेता हूँ, या सिर्फ M रख लेता हूँ, लेट से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शॉर्टकट। और सीरीज़ X वैल्यूज़ कहाँ पर हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा और उस X की वैल्यूज़ की रेंज को सिलेक्ट कर दूँगा, ये ठीक है। और फिर मैं सीरीज़ Y वैल्यूज़ ले लूँगा। सीरीज़ Y वैल्यूज़ मेरे ये हैं Y वाली साइड, ठीक है ये। और अब उसको मैं ओके कर दूंगा तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं ये फर्स्ट जो सीरीज़ है उसको भी थोड़ा सा एडिट करना चाह रहा हूँ। उसका सीरीज़ का नाम मैंने नहीं रखा था, मैं उसको V सीरीज़ कहना चाहता हूँ शेयर फोर्स के लिए। अब ये प्लॉट हो गए हैं। अगर आप इनको यहाँ पे देख सकें कि ये किस तरह से दिख रहे हैं, ये देखिएगा, ये शेयर फोर्स डायग्राम और ये आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो आप इसमें चार्ट का टाइटल भी डाल सकते हैं, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है।
और आप इसमें और चार्ट के एलिमेंट्स डाल सकते हैं। मसलन आप एक्सिस के टाइटल्स लगा सकते हैं। प्राइमरी जो है वो आपका एक्स है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपने एक्स को प्लॉट किया है, यानी एक्स इन मीटर्स, ठीक है। और फिर आप इसी तरह से वर्टिकल एक्सिस को भी कर दें लेबल, वहाँ आपने अच्छा वहाँ पर आपने इंटरनल फोर्स सिर्फ लिख लीजिएगा, इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। वो इंटरनल फोर्स शेयर को भी और बेंडिंग मोमेंट दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल आप सिर्फ इंटरनल फोर्स लिख दें। बाकी कौन सी वाली फोर्स कौन सी है, कौन सी शेयर फोर्स की लाइन है, कौन सी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लाइन है, वो आप डिस्प्ले कर दें बाय लेजेंड, ठीक है। आप यहाँ पे लेजेंड शो कर दें राइट साइड पे। ये अब आपसे इससे पता चल रहा है कि ये जो ब्लू लाइन है ये शेयर फोर्स की है और बेंडिंग मोमेंट की लाइन ये वाली है, रेड वाली लाइन। अच्छा, अब इसमें एक मसला ये होगा कि ये जो आपकी लाइंस हैं, अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, आप जमा करा रहे हैं मसलन असाइनमेंट, आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के अंदर ये दोनों लाइंस के अंदर कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, दोनों ब्लैक प्रिंट हो जाएंगी। तो अब इसमें किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या कौन सी लाइन कौन सी है, ठीक है। तो अब इससे का तरीका क्या होगा कि आप इस पर किसी एक की जो है ना, ये जो मार्कर्स हैं इनकी शेप बदल दें। मसलन आप या मार्कर्स की शेप बदल दें या आप उसकी शेप बदल सकते हैं, लाइन की शेप बदल सकते हैं। मसलन आप मार्कर्स की शेप बदलना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास मे बी लेट मी सी, इसको मैं डबल क्लिक करने जा रहा हूँ, सॉरी इसको। अब ये डेटा सीरीज़ की फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ गए मेरे पास, ठीक है। फॉर्मेट डेटा पॉइंट को नहीं करना, मैं दोबारा से कर रहा हूँ आपके सामने। ये अगर मैं इसको, अब ये सिलेक्ट हो गई है, अब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, अब ये एक पॉइंट आ गया मेरे पास। एक पॉइंट नहीं, मुझे पूरी जो सीरीज़ है उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, ठीक है। तो लेट मी सी हाउ इट शुड अपीयर। फॉर्मेट में चले जाएं और इसको हाँ डबल क्लिक करने से अब ये, हाँ ये मैं चाह रहा था फॉर्मेट डेटा पॉइंट। अगर आप इस यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे तो सिर्फ ये जो पॉइंट है ना ये चेंज हो जाएगा, इसका मार्कर चेंज हो जाएगा। आपने सिर्फ डेटा पॉइंट को फॉर्मेट नहीं करना, आपने फॉर्मेट करना है पूरी सीरीज़ को, ठीक है। सॉरी ये लाइन सेलेक्ट हो गई, अब आप इसको, सॉरी ये फिर डेटा पॉइंट आ गया, मैं ये फॉर्मेट डेटा सीरीज़, ठीक है। इसके अंदर आपको वो डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ आके मैं शायद देख सकूँगा, यहाँ इस वाले ऑप्शन में मैं गया फिल इन लाइन में, और यहाँ पर आके मैं उसके जो मार्कर्स हैं उनको बदल सकता हूँ शायद। ये लाइन के बाद मार्कर का ऑप्शन, ये मार्कर के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी शक्ल बदल दूँ। तो लेट्स सी कि ये कहाँ पे, ये यहाँ पर आ रहे आई थिंक, या मैं देख लेता हूँ कि और क्या ऑप्शन है मेरे पास। आई थिंक यही है शायद, या मैं देख लूँ अगर कोई और ऑप्शन है। मैं राउंड के बजाय अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि, सॉरी लेट मी सी, लेट मी सी, यहाँ पे शायद मार्क, ये है मार्क का ऑप्शन, आई एम सॉरी, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो बॉर्डर के ऑप्शन थे, कलर के ऑप्शन थे, फिल के ऑप्शन थे, मैं यहाँ मार्कर के ऑप्शंस में आया हूँ। और ये अभी इस वक्त ऑटोमेटिक आ रहा था तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कोई और बिल्ट इन ऐसी बिल्ट ऑटोमेटिक को डीसेलेक्ट करके बिल्ट इन को सिलेक्ट कर दीजिएगा, और यहाँ से अब आप डिफरेंट मार्कर्स चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रॉस चूज़ कर लेता हूँ। अब इसका फ़ायदा ये हो जाएगा, अब ये यहाँ पे क्रॉस आ रहे हैं, ठीक, यानी ये अब आप प्रिंट भी करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे लाइंस, ठीक है। पता चल जाएगा कि ये क्रॉस वाली जो लाइन है ये बेंडिंग मोमेंट वाली है, और ये जो डॉट्स वाली लाइन है ये शेयर फोर्स वाली लाइन है। इस केस में ये चूँकि स्ट्रेट लाइन्स थी तो मैंने स्ट्रेट लाइन वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन्स ना होती तो मैं इन ऑप्शंस को चेंज भी कर सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करता और मैं यहाँ से लेट मी शो यू,
आई थिंक चार्ट डिज़ाइन में जाके यू कैन चेंज चार्ट टाइप, ठीक है, यहाँ से आप चार्ट टाइप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोबारा से स्कैटर में जाएं और स्कैटर में जाके आप कोई और ऑप्शन चूज़ करना चाहें तो उसको भी चूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं सिर्फ समझाने के लिए चूज़ कर रहा हूँ, इसको अभी हमने करना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है, ठीक। ये मैंने चेंज किया और अब आप देख सकते हैं, आल्दो ये फिर भी एक स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है क्योंकि डाटा इस तरह का है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो चार्ट टाइप को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लॉट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि 7 आए ही ना, क्योंकि मैं 7 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई डाटा पॉइंट, ठीक है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये सिर्फ 6 तक आए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये देखिएगा, यहाँ आपने आ जाना है एक्सिस वाली जगह पे और डबल क्लिक कर देना है, डबल क्लिक, सॉरी ये देखिएगा, मैं यहाँ एक्सिस वाली जगह पे आया, हॉरिजॉन्टल वैल्यू ये, और मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे एक्सिस को फॉर्मेट करने के ऑप्शन आ गए। तो यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 7 तक ये शो कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैं 7 ना देखूँ, मैं सिर्फ 6 तक देखना चाहता हूँ इसको, ठीक है। तो ये 6 तक, ठीक है। और सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि बस ये मुझे 300 तक ही दिखाए ये वाला, तो मैं इस पर डबल क्लिक किया और मैक्सिमम यानी मिनिमम वैल्यू सॉरी -300 मैं चाहता हूँ कि ये मुझे दिखाए ऐसे, ठीक हो गया। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर नाउ। यस सर। यस सर। इस तरह से आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ करना है ऑन एक्सेल, ठीक है। इसमें मेरा 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे इस वक्त एक्सेल यूज़ करवाने के। एक ऑब्जेक्टिव तो ये कि आपको अगर कंप्यूटर पे आप कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर की प्लॉटिंग ऑप्शंस को यूज़ करें, बजाय इसके कि आप कागज़ पे डाल ग्राफ शीट जो आपको ग्राफ पेपर मिलता है उसके ऊपर आप हाथ से पॉइंट्स प्लॉट कर करके उनको फिर आप ज्वाइन करें। वो तो सिर्फ समझाने के लिए बच्चों को सिखाया जाता है, असल में तो प्लॉट जब आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो अब तो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं ताकि आप अपना टाइम सेव करें और आप ग्राफ की असल शेप को जल्दी से देख सकें, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि आप चूँकि एक्सेल कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को इस स्टेज पे नहीं आता, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक्सेल की एफिशिएंट यूज़ को सीख सकें कि एफिशिएंटली मैंने कैसे एक्सेल को यूज़ करना है टू माय एडवांटेज, ठीक है। मैं आपको इस सिर्फ ये इंटरवल्स हैं, मैं इसलिए इसको फिक्स उस वक्त नहीं किया था, मैं इसको लेट से 20 रखता हूँ, ठीक, 20 मैंने रखा। अब ये पूरी डायग्राम इस वक्त मेरे सामने नहीं है, ठीक है, पूरी डायग्राम मेरे सामने नहीं है। मैं आपको अच्छा 20 के बजाय मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, 15 करता हूँ। हाँ जी 15 मैंने किया। अब इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि 1.6 के बाद वो मुझे 3 पे ले गया। अब मैं 1.6 के बाद 3 पे नहीं जाना चाह रहा था, तो मैं ऐसे कर लूँगा कि मैं दोबारा से ये यहाँ से यहाँ के बाद मैं ड्रैगिंग कर लूँगा, यहाँ के बाद ड्रैग कर लूँगा। अच्छा मैं यही फार्मूला इधर भी तो लगा सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये 0 रहेगा, ये आपने 0 करके रखना है इसको। ये तो ज़ाहिर है स्टार्ट तो आप 0 से ही करेंगे ना, तो या आप चाहें तो इसको भी वैसे ड्रैग कर दें, सॉरी चलें इसको ना ड्रैग करें, यहाँ से आपने ड्रैग करना है फार्मूले को, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं अब यहाँ पे कोई 1.2 1.6 इसके बाद मैं डायरेक्टली 3 पे नहीं जाना चाह रहा था, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे मैं जैसे नॉर्मली ड्रैगिंग करता हूँ उस तरह से ड्रैगिंग कर लूँगा और मैं देखूँगा पहले 6 यहाँ पे आ गया, अब 6। अच्छा अब मैं मैनुअली, अब इसमें 3 खुद ब खुद वो स्किप हो गया, अब इसमें 3 नहीं आ रहा, 2.8 आ गया, फिर 3.2 आ गया, लेकिन मैं शेयर की वैल्यू चूँकि एग्जैक्टली उसका जो चेंज है वो आ ही 3 के ऊपर रहा है, यानी जस्ट बिफोर 3 वो -60 किलो न्यूटन है और जस्ट आफ्टर 3 वो -40 हो जाती है। तो मैं लाजमी ये जो 2 वैल्यूज़ है ना, ये इनको मैं लाजमी रखूँगा इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि 2.8 के बाद ये 3 मैं यहाँ पे मैनुअली इन वैल्यूज़ को इंसर्ट करूँगा, ठीक, ऐसे करके इंसर्ट और इंसर्ट, यहाँ पे मैं 2.999 में भी 4 9 कर दिए, अब मैं 3.0001 ऐसे कर लेता हूँ।
और बाकी डाटा मेरा उसी तरह से है जैसे पहले था। अब मैं इनको तो मैं शुरू से ही ड्रैग कर लूँगा नीचे। इस एक तरीका ये है कि आप ऐसे ड्रैग करें, दिस वन वे। दूसरा तरीका ये है कि आप इस जगह पे डबल आके जब आपका ये क्रॉस नज़र आना शुरू हो जाए प्लस साइन, तो आप इस पर आके डबल क्लिक कर दें। अब ये बहरहाल फिलिंग यहाँ तक करेगा जहाँ तक डेटा कंटिन्यूसली लगा हुआ है, लेकिन बहरहाल एक तरीका ये भी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं करूँगा यहाँ तक कर लेगा, फिर यहाँ करूँगा, फिर नीचे तक कर लेगा, फिर यहाँ तक करूँगा, तो ऐसे करूँगा। आप वो वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं कि आप शुरू से ही जैसे मैंने पहले किया ऐसे करके यहाँ से पकड़ें और ख़ुद इसको ऐसे ड्रैग कर दें। अच्छा, बहरहाल ये हो गया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो ग्राफ जो है वो कैसे अब चेंज होगा। अब ग्राफ तो डेटा जो है वो मेरा डिफरेंट हो गया। अब मैं इसको एडिट करना चाहूँगा, ठीक। एडिट करने के लिए मैं अब यहाँ राइट क्लिक करूँगा, यानी डेटा तो अब मेरा वहाँ तक वो ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये प्लॉट उसने आखिरी वही पॉइंट किया, 4.4 तक उसने प्लॉट किया यहाँ तक। अच्छा, एक तरीका तो ये कि आप यहाँ आके इसको चेंज करें। दूसरा तरीका ये है कि आपका जब आप यहाँ, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर आके दिखाता हूँ, आई एम सॉरी, इसको मैं डिलीट कर दूँ क्योंकि ये तो सिर्फ आपको बताना था। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप यहाँ राइट क्लिक करें, फिर आप सेलेक्ट में जाएं और यहाँ एडिट में चले जाएं। इसको सिलेक्ट करें, इसको एडिट करें और मैनुअली आप चेंज कर दें कि डेटा मेरा अब यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। मैं आपको एक इसी तरह मैनुअली करके दिखाता हूँ, दूसरा फिर आपको मैं ऑटोमेटिक भी दिखा देता हूँ। अब शेयर फोर्स वाली डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि वो पूरी स्पैन पे चली गई है, ठीक। मैं इसको Ctrl+Z कर रहा हूँ, मैं आपको दूसरा शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसको मैंने Ctrl+Z कर दिया, अब दोबारा से ये यहीं तक आ गया। आप जब यहाँ आ जाएंगे, इस यहाँ पे रख लेंगे ना इसको, आप इसको आपने इस सीरीज़ को आपने सेलेक्ट किया ना, इस सीरीज़ को, इस कर्व, इस वाली लाइन को, तो आपको ये दो नज़र आ रही हैं। आप इनको यहाँ आप रखेंगे ना अपना कर्सर, तो ये आपको ड्रैग करने का ऑप्शन देगा। यहाँ से आप इसको, एक सेकेंड, ये आप इस पे आप देखो, जब मैं एक इस साइड पे रखता हूँ, ये देखिएगा इस साइड पे, ये जब मैं इसकी बाउंड्री पे आता हूँ ना, तो ये हाईलाइट हो जाता है, ऐसे हाईलाइट हो गया ना। अब आप यहाँ आ जाएं, जब ये हाईलाइट हो गया, इसके कॉर्नर पे आ जाएं, सॉरी ये हाईलाइट हो गया, ये कॉर्नर पे आ गए, आप इसको ड्रैग कर दें। इसी तरह जब ये हाईलाइट हो जाए तो आप इसके कॉर्नर पे आ जाएं, इसको ड्रैग कर दें। अब वो डेटा पूरे 6 मीटर पे चला गया। सिमिलरली आप इसको सिलेक्ट करें, आपको वो डेटा दोबारा ये वाला एक्स वाला डेटा भी दिखा देगा, और ये हॉरिजॉन्टल वाला भी और वर्टिकल वाला भी। अब मैं क्या करूँगा, इसकी बाउंड्री पे आ जाऊँगा, बाउंड्री पे आके इसको ये जब सिलेक्ट हो जाए तो फिर मैं ड्रैग कर दूँगा, फिर इसी तरह इसको मैं ड्रैग कर दूँगा, ठीक हो गया। दिस इज़ अ क्विकर वे ऑफ चेंजिंग द रेंज ऑफ द एक्स एंड वाई वैल्यूज़। तो अब आप देख रहे ज़्यादा पॉइंट्स आ गए। अब इसमें केस में चूंकि स्ट्रेट लाइन से के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है सारी डायग्राम, पहला सेगमेंट भी दूसरा सेगमेंट भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, इसलिए चाहे आप ये इस तरह से ज़्यादा पॉइंट्स करने से भी वो लाइन उसी तरह स्ट्रेट ही है, क्योंकि अब उसी लाइन के ऊपर सिर्फ और पॉइंट्स शो हो गए, शेप ऑफ द लाइन वही रहे, शेप ऑफ द ग्राफ वही है, ठीक हो गया। सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस? It's clear, sir. It's clear. So नॉर्मली जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम बीम की पूरी जो फ्री बॉडी डायग्राम होती है उसके एग्जैक्टली नीचे उसको ड्रॉ करते हैं। यानी व्हाट वी डू इज़ कि हम ये डायग्राम दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम पूरी ड्रॉ की, मैं थोड़ी सी इसको खींच देता हूँ, ठीक है, और फिर उसके ऊपर हमने ये वाली डायग्राम नीचे रखनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके अंदर I want to copy this. I want to copy this. और मैं उसको यहाँ पे इसके नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि अब मेरे पास तो खैर ये ऑप्शन है कि मैं अब वन नोट के ऊपर कर रहा हूँ, तो आई कैन मूव थिंग्स अराउंड ईजीली। मे बी आपके पास इस तरह का ऑप्शन ना हो, लेकिन रफली आप भी इस तरह की
डायग्राम्स को प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे तकरीबन उतनी लेंथ का बना दूंगा, अब ये तकरीबन उतनी लेंथ का हो गया, तो अब ये ऑलमोस्ट उसी के नीचे आ रहा है, यानी ये बी पॉइंट यहीं पे आ रहा है। अगर मैं ऐसा करना शो करना मुश्किल हो तो आप इसी जगह पे टेक्स्ट ऐड कर दें ए बी सी के, यानी मसलन आप यहाँ पे ऐड करते हैं, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स में जाके यहाँ पर आके आप लिख दें यहाँ पे कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है। मे बी यही टॉप पे ही प्लेस कर दें। इसके आप थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा, आपके आउटलाइंस आपको नहीं चाहिए इस केस में, सिर्फ आपको पॉइंट प्लॉट करना था, आप उसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर दें, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा आप बेशक उसको यहाँ प्लेस कर दें ताकि बाकी उसको या शेप का जो फिल है वो भी ख़त्म कर दें आप, ठीक है। इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहें उसको मूव करना, ठीक। ये ए पॉइंट है आपका। फिर इसी तरह से आप बेशक इसी को कॉपी करके आप ले जाएं यहाँ पे और आप इसको चेंज कर दें कि ये मेरा बी पॉइंट है। इस तरह से मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप फिर कॉपी करके यहाँ ले आएँ, ठीक है, और इसका आप नाम दे दें सी। देयर यू आर। ऐसे आपने प्लॉट करना है। ये 0 0 वाली लाइन इधर है तो आप इसको 0 0 लाइन के ऊपर ही रख दें, ऐसे करके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लॉट इट। यहाँ इनको आप इस तरह से कर लें कि आप इन यहाँ पे v के साथ किलोमीटर और m के साथ किलोमीटर मीटर रख लें, ठीक है, ताकि पता चले किस यूनिट्स पे प्लॉटिंग हुई है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंप्लीट द ड्राइंग, और फिर आप इस सारे रिज़ल्ट को इस तरह से शो कर सकेंगे। अगर आप के पास आप मसलन पेपर के अंदर आप कर रहे हैं और आपके पास एक्सेस नहीं है कि आप एक्सेल शीट यूज़ कर सकें, कंप्यूटर एक्सेस आपको नहीं है, तो फिर आप ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे, लेकिन ये टू द स्केल काम करेंगे सारा। यानी ये जस्ट आप जिस तरह कागज़ के ऊपर ही गंदे से लाइन बना के आप अंदाजे से प्लॉट करते हैं उस तरह नहीं होगा। यू विल हैव टू ड्रॉ, ये लाइंस आपको स्केल के साथ ड्रॉ करनी होंगी स्ट्रेट, और जो वर्क है ये आपको ग्राफ शीट के ऊपर ही अलाउड है, ठीक है। प्लॉटिंग जो है वो ग्राफ शीट के ऊपर ही आप करेंगे, उसके अलावा नहीं होगी प्लॉटिंग।